Very good afternoon, Archika, and we are Archika and Ashima on ISKA. What is ISKA? We are Indian Specialized Counseling Academy, Indian Specialized Counseling Academy, Archika and Ashima trying to make a difference by helping people finding the ways ahead. And today's topic is, can relationship issues be resolved? And it's a very tricky question. And we have Saurabh. I think Saurabh is relatively new. Archika, would you want to have a chat? Sure. Hi, Saurabh. Can you unmute yourself? Is he new here? Yeah. We also Prableen is on a speaker panel. Prableen and I think they both are I new. guess. Yeah. They both are new guys. Hi Prableen. Hi, ma'am. I'm good. Yeah, actually, I'm learning. I'm basically practicing my English. So that's the only reason. And yes, today is my first day. And even I don't have any idea about like how to join any group. You're already in a group. You've already Yeah. joined in. The same way you can join other circles. Yeah. Absolutely. Is it Absolutely. first this app is free of cost or we have to pay something? Some circles are free, and after that, yes, there is a very small amount which you have to pay for 3 months or 6 months or 1 year as per whatever you want. But the money which is being asked is not as big as you will be getting help. So the help which you will get I would be would say, huge. Ashima, it's worth giving that money. Absolutely, it's very small, Archika. Yeah. Very minimal charges they are asking Mentaza compared to what the people getting here. Yeah, when you talk about, the kind of help in learning English and improving English and understanding a lot of things and mental well-being, what we are doing here, helping people in understanding, it doesn't come at this price. One session costs, for mental well-being 2,000 to 5,000 somewhere. And the English language, we all know, the batches of 2 months, 3 months, they're charging 10,000, 20,000 rupees. And here, I guess for annually, they are charging only 499 or something, Yeah. something like that, or 800. Well, I don't know what it is, Yeah, but it's very quite, 1,000, less than 1,000 rupees, I would say, less than for a thousand, year, not for a year, not coming 100 per year, if in fact, per 100 per month month. also. Sorry. Yeah, absolutely. So going on to what are relationships and can they be, resolved, relationship issues? And I think we have not been able to talk to Saurabh. Guys, you have all the reasons to participate, to ask us anything. Yesterday we gave a little task. We still have people to join, so we will know if people have really done their tasks. We have Deepak and Noor also with us who have joined, if they have anything to add. Because today we'll be talking about relationship issues. A lot of people would agree that a lot of problems in the relationships, they're very difficult to resolve. But with the concept of neuroplasticity, which says that anything is possible, your brain, your thoughts, anything can be changed if you're willing and if you have the insight. And relationship is always a two-way game. It takes two to tango. So if two people are ready to work towards it, absolutely. So Archika, I'll quickly go on to the common misconceptions about the irreparability of certain relationship issues. लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप इश्यूज बिल्कुल ही रिजॉल्व नहीं किए जा सकते हैं, तो उसके पीछे कुछ मिसकंसेप्शंस है. जैसे बोला जाता है कि अगर विश्वास एक बार तोड़ दिया तो वापस उस इंसान पे विश्वास करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. व्हाट डू यू हैव टू से? क्या ऐसा होता है कि अगर आपका विश्वास किसी ने एक बार तोड़ दिया तो उसके ऊपर दोबारा विश्वास करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है? इट इज इररिपेयरेबल. अर्चिका. वेल दिस स्टेटमेंट इज समथिंग जो बहुत कॉमन है और हम लोग अपना ये मिथ बना के बैठ ही जाते हैं कि एंड फर्स्ट आई विल से कि यू सेड नो कि प्यार एक बार होके दोबारा नहीं होता, पर क्या ऐसा होता है क्या?
we love our parents, then we start loving husband, then we start loving kids and all. So We love it's our not like friends, that. our We love siblings. our friends. तो प्यार ही होता है. हाँ, उसके थोड़े मायने बदल जाते हैं, थोड़े मतलब रूप अलग होते हैं. स्टैंडर्ड्स रूप अलग हो जाते हैं और डायमेंशंस अलग हो जाती हैं. द वे वी आर एक्सपेक्टेशन जो हम बहुत बात कर रहे हैं आजकल, हर रिलेशन की एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स ये सब सारे अलग हो जाते हैं. बट फीलिंग तो वही रहती है ना, केयरिंग and affectionate and we want to be with that person, we want that person around. उसी को शायद प्यार और केयर कहेंगे. तो अगर किसी ने हमारा विश्वास तोड़ दिया, if somebody has broken trust, this is not an English speaking group, Saurabh, but you can speak, you can talk, you can understand, you can listen, because when you talk about English speaking and English learning, it is about the most important thing about English learning is listening. And then when you listen, trying to understand whatever is being said by the others and building on it and even paraphrasing it, then it matters, it makes a lot of difference. But this is not purely vocabulary or grammar thing which is happening over here. So when we talk about once trust is broken, it is irreparable, I think it's not true, but yes, it takes two to tango. It really is important for two people to be willing to be able to understand what went wrong, how things went wrong, and both the partners to understand that it can be a mistake of both sides, either of them. But if a person has ego and is not really ready to realize कि मेरी गलती हो सकती है, I think then the major problem starts. What do you say, Archika? Correct, and I agree with you. And here I would say, Ashima, कि अगर forgiving वाला जो talent कहें या technique कहें या it's a quality also when you can forgive people. So it's a kind of quality you are having inside you, or either you have it inherited कि घर से और family की upbringing से आई है, या फिर आपने acquired की है बाहर से, आपके nature से. But if you have that forgiving thing, so it's very easy. Because family may be कई बार, in our family also, it's not always everything goes perfectly, everything goes right. ऐसा तो कभी नहीं होता कि सारे रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे चलते हैं और हमारा कोई विश्वास तोड़ता ही नहीं है या कोई झूठ बोलता ही नहीं है या कुछ गलत होता ही नहीं है. ऐसा तो कभी नहीं होता आई थिंक प्रैक्टिकल लाइफ में. बट स्टिल बिकॉज फैमिली है, नहीं वो मेरा ब्लड रिलेशन है, नहीं वो मेरी फैमिली है, तो एक बार माफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक गलती छोड़ देते हैं. लाइक बच्चों के साथ हम बहुत करते हैं विद आवर किड्स. वी कीप ऑन फॉरगिविंग बिकॉज वी वांट देम टू इम्प्रूव. We want them to learn. We want them to be on a right track. And more on of all of this is we want ourselves to be, like their parents. We want to protect them. True. So we should. This is a very beautiful point which you brought, Archika, that we never, if our children break our trust, if the children break the trusts of their parents, they never give up on their children. They always would want to still go back, trust their children. So which means that we have that forgiving nature. And it is only that in certain relationships we get adamant, right? We get adamant that no, this is not my mistake. He or she has broken my trust. Why should I? आशिमा, मुझे और तुम्हें भी शायद यही लगेगा कि ये वाला जो फैक्ट है जो अभी तुम लेके आई हो और तुमने जो ये बनाया, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड वेरी ट्रू फैक्ट कि शायद ये जो लव रिलेशनशिप, कपल रिलेशनशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप होते हैं, यहाँ जो ट्रस्ट एक बार टूटता है तो उसको रीबिल्ड करना, आई विल नॉट से कि मुश्किल है, नामुमकिन है, ऐसे कि इजी नहीं है. कर सकते हैं, बना सकते हैं, उस पे काम भी किया जा सकता है, बट इजी नहीं है टास्क ये. मतलब कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है. ईगो फैक्टर comes in, right? Nowadays, earlier I would say कि पहले शायद ईगो फैक्टर नहीं, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम और वो आ जाती थी. अभी ईगो थोड़ा ज्यादा आ जाता है, एनालाइज वाला पॉइंट थोड़ा नीचे रह जाता है, और सोचने समझने का जो फैक्ट होता है कि चलिए उसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, चलो एक मौका देते हैं, वो वाली चीजें खत्म हो रही हैं. वी आर नॉट थिंकिंग, उस सेगमेंट पे तो सोचा ही नहीं जा रहा है.
मतलब The कहते हैं element of ना patience. एक्सट्रीम वाला है, इधर completely you're 100% mine or you're out of my life, my way or highway kind of thing is happening. What do you think? Absolutely, absolutely. और trust जो है, अगर in a romantic relationship, if you have to build the trust back, it will have to be a consistent communication. There has to be transparency. There will have to be a willingness from both the sides. That commitment has to be there, and then the couples will have to navigate it together instead of trying to be. Absolutely, Noor. Patience is a very strong word, isn't it, Archika? The one word you just said, commitment. So we are actually looking for that word and we are looking for the actually मुझे लगता है कि आज के टाइम में लगता है कि बस एक बार शायद ना लिखवा ही लेंगे, स्टैम्प पेपर पे बस लिख के दे दो, ये तो तुम करोगे इस रिलेशनशिप में मेरे लिए, this you'll do, this you will not do, this you are allowed, this you are not allowed, but this is not something we can live upon. Saurabh says, Archika, please speak in English. Saurabh, we would want to hear you. What do you have to say, my dear? Can we hear and talk to you and understand what do you say? What do you think about relationships? I mean, your parents, your friends, your siblings. How do you navigate Saurabh, in relationships? this channel, we are not bound to speak in English. We are psychologists and there are few facts and few things we need you to understand. We want to make it clear to the people, and sometimes this goes like this. And this English speaking thing is never work in same way. When we are doing workshops, when we are doing other classes or taking classes, so it goes both ways, English and Hindi. Yeah, I mean, here. And that is my style. I'll say that is my style. That is how I do. मैं ऐसे ही करती हूँ. Right, absolutely. Absolutely makes sense. So the trust part is very important. Once broken, it can be repaired, but yes, the willingness has to be there, and the willingness has to be there from both sides, from both the partners, right? So let's move on further to next one. Next misconception is communication breakdowns are unfixable. If somebody is not able to talk, if there is a communication breakdown, people will not be able to fix it because they will not be able to communicate well once they have not been able to understand each other, communicate with each other. This is another misconception about relationships, and especially couple relationships. What do you have to say about this, Archika? Absolutely, Ashima, communication, but it is not like that. One day you are not talking, other day you are not talking, and after 5 days you feel, oh, last 5 days we didn't have a word, so now we cannot talk. It's not like that. You have to initiate it. You have to take that step forward. So this is What about also the a friends? misconception. It's a misconception, completely misconception. And we have cases, we have in our history, if you see कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे cases हैं where parents, they were not in talking terms with the kids, the couple, they and okay, well, it's not I don't know, but we can relate to it, like the army people, do they talk every day to their family in a length? Do they? But No, whenever they they are don't. coming home for a vacation for a 1 month or something, then they talk, they discuss everything, and they are on a same tangent and same line and length. How it possible and how it happens? Here I would talk about somebody who is in a relationship. They are living together, meeting each other every day, but they are not able to communicate well to each other, and they are not. There is a breakdown, and a gap has happened. A communication gap has happened. I think it can be filled in. Only it will take a special effort. And as you said that as therapists, as counselors, we have had people, whether they are parents and children, whether they are romantic relationships, couples, or anybody, siblings, if they had a communication breakdown and they both were willing to, build it up, to build a bridge to walk together, when they reach out for a help, for a counseling session or a therapist, it makes a lot of sense to them, isn't it? Yes, of course, every time they get this perspective, they get this learning, and they are like, why didn't we thought of it? ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? ये तो आसपास ही था, ये थॉट तो मतलब बहुत कॉमन है. This pattern is very common. But it's like again, that.
It is it, क्योंकि हम लोगों के blocks, when the blocks are being made, when we have those blocks in our minds, things become a little difficult, isn't it? And it is a little difficult to really understand and cope well, and go ahead and do the things in a way. So instead of being able to understand, because the mind block has been built, but this willingness is there on the part of both, so they reach out to people, friends, therapists, counselors, to understand how they can take the help, right? Actually, we forget to see the facts. हम लोग जो रियल फैक्ट्स होते हैं ना लाइफ के, वो देखना भूल ही जाते हैं. एंड हम लोग वन साइडेड, इट्स लाइक व्हेन यू आर प्लेसिंग योर हैंड इन ऑन योर नोज एंड यू आर पार्टिंग योर फेस, राइट? So एक लेफ्ट साइड इधर आ गई, राइट साइड आईज ऑन डिफरेंट साइड, एंड यू कैन सी ओनली वन साइड. नाउ व्हाट इज हैपनिंग ऑन द अदर साइड, यू आर नॉट अवेयर. और हम उसी साइड को देखते देखते उसी पे अपना जो थॉट प्रोसेस शुरू कर देते हैं. वी स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट लाइन एंड लेंथ, एंड वी स्टार्ट मेकिंग आवर थॉट्स. Then we make a pile of the thoughts. One thought is coming, the second, third, fourth, five, and then mountain is there, unbreakable. As per us, Communication gap happens because we are not ready to talk to the other person. We are making castles in the air in our own minds. We are building so many emotional upheavals in our mind that we are not able to understand anything of the other side, and we are not ready to get up and talk, right? वे लाइक सबसे पहला मुझे लगता है मैं ही क्यों? Why should I be first? अच्छा अर्चिका, next misconception is once a cheater, always a cheater. एक बार चीटिंग किया तो हमेशा चीटिंग करेगा ये बंदा या बंदी. Do you think For this is this, a we have to have a real-time experience, Ashima? What do you say? This is something very, we can make everything easy if we want. Like we can forgive, and we can do this, telling them, teaching them, molding them. But there's, have you heard of the kleptomania thing? That is Go a on. kind of disorder where you are actually prone, and you cannot keep your hands off things, and you steal them. Stealing. Kleptomania, guys, it means it is the madness of stealing. You love to steal. It's kind of a Love to disorder. Love to steal. This is a word, love. You love to steal, and matlab, even if you know you should not do it. And there are people who are having this problem, and they are actually having everything. They are having big houses, they are having good bank balances, and they are filthy rich people, wealthy. They are having almost everything. They can afford everything in life, but still, because of this issue they are having, they cannot keep their hands off. They'll do it. In hotels, they start liking the cutlery, so they'll steal them. In shops, they'll steal some ornaments or some arty crafts or anything. So what do you say about this? Absolutely. But this is something, an issue we are having. This is something, a disorder we can say. But cheating is something cheating, अगर हम किसी भी थॉट को, किसी भी प्रोसेस को, या किसी भी सिचुएशन को बहुत डीप रिसर्च एनालाइज, या किसी रिलेशनशिप को भी अगर हम बहुत जाके डीप पढ़ना या सोचना शुरू करते हैं, तो उसके भी काफ़ी फैक्ट्स, काफ़ी रूट्स, काफ़ी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस भी निकल के आते हैं. सो आई थिंक चीटिंग का भी कुछ ना कुछ पैटर्न तो रहा होगा, कुछ फैक्टर्स तो रहे होंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो कहीं तो आती होंगी. सो इट डिपेंड्स कि उनको हम कितना एनालाइज कर पा रहे हैं. And other than that, you don't know, Ashima. I cannot judge people without talking or without, doing the proper process. Absolutely. So, but yes, अगर कोई हमारा विश्वास तोड़ता है, if somebody breaks our trust, चाहे वो हमारा friend हो, भाई बहन हो, parents हो, or you're talking about your partner, your husband or wife or your whosoever. Noor wants to say something. Go on, Noor. अस्सलाम वालेकुम, आदाब. आशिमा मैम, आज के मैम सकूंगी मैम. ऐसे लोगों के साथ कैसा डील करना है? मतलब जो लोग बार बार चीट करते हैं, बोल के हम लोगों को समझ में आता रहता, लेकिन फिर भी हम वो इतने खास हो जाते कि ना उनसे हम लोग वो तोड़ सकते या जोड़ के रह सकते. तो फिर ऐसे लोगों के साथ कैसा? So I guess, Noor, उनसे उतना ही वास्ता रखना चाहिए. You should have your limitations. You should draw your lines. You should know
कहाँ तक जाना है और कहाँ से टर्न कर जाना है, राइट? I think that makes sense. Because you Do cannot break your ties with them, and they are around, they are in your surroundings, and they are in your maybe in a friend circle, in a family, and in a relatives. You are aware with their nature, with their behavior, their attitude, and everything, and you know the limitation of yours. So better you draw a line. Say, this is my line. I will not cross it, so I'll not get hurt. I will not get into that issues. I'll not mess my thought process because of that person. Can we do that? And we should know how to do that with everything in life, every emotion in life, every person in life. If we are facing some issues and we are getting insight from somewhere, we are aware of something. So I think drawing a line and knowing our limitation is the best thing to do. Which is important, Archika, very rightly said. If you know that somebody is cheating all the time, is lying all the time, and is somebody who is, always trying to say bad things at your back, you can't take things lying down. You have to get up. You have to face such a person. You either, if that person is somebody who doesn't make a bigger difference in your life, then you can put them on the side and you can say, chalo, theek hai, no problems. He or she is there, it doesn't really make bigger difference to my life, so let it be. But if that person really is important in your life, you have to get up, you have to communicate in a good manner. You have to tell that person that you know it all. You can't tell that person that, no, let it be, I don't mind. You have to, because if you just shove it under the carpet, at a later stage, it can give you a lot of trouble. It can give you a lot of problem. So I don't think it is right to let it be. You have to know. If somebody is doing something to you and that person is really important in your life, you have to get up. You have to face them. You have to confront them. And if that relationship really matters for them, they will have to, stand up and understand what you're saying. Good afternoon, Umesh. Do you know what we are talking here? Do you have anything to add? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Asma ma'am, Noor, Saurabh, auntie. Good afternoon, sir. जी, tell us, Umesh. Yes, हमारे madam. पास हमारा टॉपिक है, कैन रिलेशनशिप इश्यूज बी रिजॉल्व? बहुत जरूरी है मैडम, बहुत जरूरी है ये। जो भी है मन में मतभेद किसी के प्रति भी या मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी है, उसको जी रिजॉल्व कर लेना चाहिए। और हर तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। अभी हम बात कर रहे थे, अभी नूर ने एक हमसे सवाल किया कि अगर कोई ऐसा इंसान है who you know that person is lying, is breaking your trust, is saying wrong things to you, is not completely being honest, what do you think you should be doing in such a situation? मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से इसका अपना व्यू रखने के लिए। स्टार्टिंग पे ऑलमोस्ट 1 वीक बैक मैं इसी सर्कल पे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वर्किंग इन्वायरमेंट में समथिंग निगेटिव इन्वायरमेंट है, मैं यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ हूँ, इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा बराबर काम करने का बिकॉज ऑफ द जो भी मेरे सीनियर्स हैं, जो भी है ऐसे चलता था। तो सिंस मैं इस फील्ड में काफ़ी सालों से हूँ, तो मेरा काम करने का तरीका एग्रेसिव है एंड दैट इज द डिमांड ऑफ द जॉब आल्सो। एग्रेसिवली ही काम करना पड़ेगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, टिक पाएंगे इस लाइन पे, नहीं तो आउट हो जाएंगे हम लोग जी। तो इस कंपनी में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे सिंस जो बॉस थे वो उस तरीके से स्पीड मेरे ब्लॉक किए थे और काफ़ी समय से चल रहा था एंड विदाउट, और वो सब पॉइंट जो अभी नूर ने बोला कि कोई आदमी ऐसा है, तो वही सब मेरी फीलिंग था उनको लेकर। ऐसा चलता रहा, कंपनी में 9 घंटा काम करता रहा, दिमाग में वही चलता रहा, वही मैं घर लेकर जाता रहा, क्योंकि कैरियर की बात थी कि ऐसे चलेगा तो कैरियर में कैसे प्रोग्रेस हो पाएगी,
कितने आगे जा पाएंगे इस माहौल पे। ये तो कंपनी स्विच करो बिकॉज ऑफ द बॉस, कंपनी भले अच्छी है लेकिन बॉस तो सही नहीं है तो आपको स्विच कर लेना चाहिए। ये सब चीज दिमाग में चलता रहता ये मान के चलो 24 घंटे में 20 घंटे वो मेरे दिमाग में ही बैठे रहते थे, कंपनी में, कंपनी के बाहर भी। संडे मॉर्निंग 7:30 को मेरे को कॉल आता है मेरे कलीग का कि उमर सर को थोड़ा बेहोश हुए हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, हम लोग पहुंच रहे हैं, तुम पहुंच सकते हो तो पहुंचो। विदिन 20 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गया। सर एडमिट थे, मैंने पूछा कैसे हैं अभी, बोले सर एडमिट होने से पहले, हॉस्पिटल लाने से पहले ही हैड एक्सपायर्ड, वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। वो पर्सन जिनको मैं कंटिन्यू समथिंग निगेटिव मेरा उनके प्रति वो था, और मैं उनके साथ एक्स कंपनी में भी पहले भी काम कर चुका था 3 साल के आसपास। वहाँ पे उनके जो डिसीजन थे मेरे को लेकर, मेरे को कैरियर में बहुत पीछे ढकेले थे, हर जगह मेरा काफ़ी नुकसान किए थे उधर उस कंपनी में, और यहाँ पे भी ऐसा था। तो सिंस मैं उनको सही में लाइक नहीं करता था, और मैं मेरे लाइक नहीं करने का रीज़न ऐसे नहीं कि मैं गलत था, ओवरऑल उनकी रेपो ऐसी ही थी। तो ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ मैं अपना स्वार्थनेस की वजह से मैं उनको पसंद नहीं करता था, नहीं, उनका बिहेवियर ऐसा ही था अपने सबऑर्डिनेट के प्रति। तो सभी का विचार ऐसे ही थे, लेकिन सिंस मैं ज़्यादा अफेक्ट हुआ था पुरानी कंपनी में भी और यहाँ पे थोड़ा क्लोज था, और मेरा पर्सनालिटी भी थोड़ा इमोशनली है, तो उनके रहते हुए भी और जाने के बाद भी, अभी जब से वो गए हैं, आज हो गए 5 दिन हो गए हैं, संडे को तो पूरा दिन वो थे हॉस्पिटल में ही, उनको रखा गया, उनकी फैमिली का वेट किए, उनकी वाइफ, उनकी बेटी थी केवल, हमने वेट किया, हमने मैट्रिक यार्ड में रखे। दूसरे दिन वो था कि दाह संस्कार नहीं करना है, दूसरे दिन हॉस्पिटल से उनको घर लेके गए, फिर घर से फिर शमशान घाट लेके गए। कंटिन्यू मेरी नज़रें उनसे, अब पुरानी बातें जो थी पूरा दिमाग में आ रहा था, और जो भी चीज़ मेरे मन में निगेटिविटी थी वही चीज़ रुला रही थी, मेरे को गिल्टी फील करवा रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, लाइफ में सब कुछ यहीं छूट जाना है, ना तो पोजीशन टाइटल कुछ भी नहीं रहने वाला। ये हमारे ईगो हैं, ये हमारी नासमझी है कि हम लोगों को करेक्ट करते रहते हैं, लोगों से उम्मीद करते हैं वो हमारे हिसाब से व्यवहार करें, जरूरी नहीं है, हमें भी उनके हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। वो जब लाते थे, जब डांटते थे, मुझे उनके पास जाके उनकी परेशानियां समझनी थी, मुझे ये फील करवाना था, और वो काफ़ी हाइपर थे, मुझे फील करवाना था, डोंट वरी सर, मैं यहाँ पे हूँ, आप बताओ मेरे को, मैं करके देता हूँ आपको। तो सिंस मेरा बिहेवियर मेरा जो है कि यार इससे गलत मैसेज जाएगा कि मैं सर का चापलूसी करता हूँ, ये सर सब समझेंगे मैं चापलूसी करने आया हूँ, प्रोफेशनलिज्म में ही विश्वास करता था, बी द प्रोफेशनलिज्म, जितना साहब बॉस बुलाए उतना जानेगा, ना बुलाए नहीं जानेगा। लेकिन ये अटैचमेंट की वजह से आज 5 दिन हो गया, मेरे को कुछ बहुत गिल्टी फील आ रही है, बहुत मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने मिस्टेक किया पूरा, मेरे को सर के आप एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत इंसान हैं, मगर तो मैं यही जिंदगी कहना किसी चाहूँगा की कि जो अगर भी मन में खटास वगैरह हो वो सॉर्ट आउट करना चाहिए, अगर वो आदमी थोड़ा भी इम्पार्शल रहता है। उमेश जी, कैन यू हियर? जी, और कुछ कहना चाहेंगे? यस, नहीं हो गया उमेश मैडम। जी, जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका जाना लिखा था, क्या आप रोक सकते थे? नहीं, क्या आपकी वजह से गए वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप क्यों जेबी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जेबी, उन्होंने वो आई थिंक ये नए हैं शायद, इनको 1 मिनट, हाँ शायद सो उमेश जी मैं सिर्फ ये मेंशन करना चाह रहा था आज पहले कि बचवन के मैंने वो ठीक है जेबी, 1 मिनट यार, आपसे बात करते हैं बेटा, लेट्स हियर व्हाट उमेश जी से। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हमारी बिहेवियर ये लोगों से दूर करती है हमको, हमें अपने को खुद में अपने को झांकना चाहिए कि यार हमारा बिहेवियर भी प्लीजेंट है क्या, हम सही हैं क्या, हम सिर्फ दूसरों में देखते रहते हैं, मुझे अपने में देखना चाहिए कि यार मैं कैसा हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है।
आई थिंक ये आपने बहुत पते की बात कही, मगर जहां तक आप गिल्टी में हैं, वो गिल्ट किस वजह से है मैं वो समझना चाहती हूँ। ठीक है, आपको ये गिल्ट लग रहा है कि आप उनको कोसते रहते थे क्योंकि उनकी वजह से आपको कई बार नुकसान हुआ, जी जी और यहाँ पर शायद आपकी बात में एक दम भी है, मगर क्योंकि हम इंसान हैं और हम सब इस पूरे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से घिरे हुए हैं, तो हमें अगर कोई आघात पहुंचाता है या हमें कोई चोट पहुंचाता है तो हमें दर्द होता है, और हम उनके लिए जाने अनजाने में कुछ ऐसे शब्द कह देते हैं जो हमें बाद में लगता है अरे नहीं कहने चाहिए थे। बट और शायद आपने मेरे ख्याल से उस तरह के गलत शब्द ना भी कहे हों, मगर बहुत से नहीं लोग नहीं, गलत शब्द नहीं, कभी नहीं, गलत हाँ शब्द बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। कहा, मेरे तो को फिर जस्ट आपको डिसअपॉइंटमेंट गिल्टी है क्यों उनसे। हो रहा है? एक्चुअली उमेश जी, गिल्ट आपको हो रहा है क्योंकि आपको बहुत बार लग रहा है कि शायद मैं कुछ कर सकता था, कर सकता था शायद अच्छे मैं अपने उनके साथ रिलेशन अच्छे रिलेशन में बॉन्ड बना सकता था। मगर ओके क्या सो उन्होंने या आपको वो मौका दिया? नहीं, नहीं दिए। ओके, तो इट्स ओके। उनकी एक अपनी बाउंड्रीज थी अपने प्रोफेशनल वे में जो उन्होंने क्रिएट की हुई थी, और आप लोगों की भी एक बाउंड्री थी। हो सकता है आपकी बाउंड्री थोड़ी छोटी थी और उनके जो वॉल्स ही थोड़े हाई थे, तो इट्स ओके। सो अभी आपको क्या करना है उमेश जी, अभी आपको जो ये आपका एक्सपीरियंस है, इसे गिल्ट नहीं, इसे आप एक्सपीरियंस को लर्निंग की तरह लीजिए। हर एक्सपीरियंस, हर इंसिडेंट हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखा के जाता है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप वहाँ काम कर रहे हैं कंपनी में, बॉस का अपना एक एटीट्यूड था, बॉस का अपना एक बिहेवियर था, उनका अपना एक डेकोरम था जो मेंटेन कर रहे थे, एंड आप उसी ऑरा में काम कर रहे थे। अगर उनकी ऑरा आपको एंटर करने को नहीं कहेगी, अगर यहाँ मैं और आशिमा अगर आपको किसी को भी यहाँ एंटरटेन नहीं करेंगे, आपको बात नहीं सुनेंगे आपकी, तो आप अपनी बात कह कैसे पाएंगे? अगर मैं समझने की कोशिश करके आपको कोई तरीका नहीं बताना चाहूँ तो आपको नहीं पता चलेगा। अगर इसको हम सुपरफिशियली लेके अच्छा ठीक है, लोग हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, कर रहे हैं, तो इट्स लाइक हमारा एक ऑरा होता है। किसी का ऑरा वीक होता है, किसी का स्ट्रांग होता है, किसी का बहुत प्लीजिंग होता है, किसी का बहुत अच्छा होता है, तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑराज। सो उमेश जी, ये आपके लिए एक्सपीरियंस रहा, और आपने जो अभी अंदर आप जो फीलिंग फील कर रहे हैं वो गिल्ट नहीं है। आप अपने अंदर जो बिहेवियर है उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि संडे के बाद से जब भी आप बिहेव कर रहे होंगे या कुछ कह रहे होंगे तो आप बहुत सोच रहे होंगे। यस मैम, एब्सोल्युटली। आप सोच रहे हैं, अपने कलीग के साथ भी आप बात करते हुए सोच यस रहे होंगे कि यस मैं कुछ ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ जो मैंने पहले किया, ऐसा तो नहीं करने वाला हूँ मैं। एंड नाउ यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, जो आपको नहीं पता चलेगा, पर थोड़े टाइम बाद आपके आसपास वाले लोग आपको बताएंगे कि उमेश जी कुछ चेंज है शायद आप में। और चेंज नहीं भी आएगा तो आप अब ये कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा आगे से कि जहाँ आपको ऐसा लगे, एक बार, बस एक बार, नॉट एवरी टाइम, बट एक बार आपको ये कह ज़रूर करना है कि अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आदमी बहुत परेशान है, परेशान नहीं, बहुत रिजिड है, और कोई किसी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं आप रुक रहे हैं लाइफ में, और वो आपको हेल्प भी कर सकता है और वो आपको रोक भी सकता है, उसमें ये एबिलिटी और कैपेबिलिटी है, तो एक बार इनिशिएटिव लेके उस आदमी से बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका फिर जो ड्यूटी है या अपने मन का जो मतलब एक प्रोसेस है, ख़त्म हो जाता है कि मैंने ट्राई किया, कोशिश किए बिना हार मान ली, तो फिर वो हार तो आपने ज़बरदस्ती मान ली, बट कोशिश करने के बाद जो हार हमें मिलती है वो हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन देती है, उसको हम एक्सेप्ट कर पाते हैं और उसको कहीं ना कहीं रीजन आउट कर पाते हैं। ओके, अर्चिका, एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी, उमेश जी ने या बोला उन्होंने कभी अपने बॉस के लिए गलत नहीं बोला। हाँ, उनको बुरा लगता था कि भाई सब मेहनत कर रहा हूँ फिर भी ये मुझे क्यों इस चीज का क्रेडिट नहीं मिल रहा है, राइट? और कहीं या उन्होंने उनको गलत नहीं बोला। हाँ, ये बोला होगा यार ये क्या बंदा है यार, इसको समझ ही नहीं आता, इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर उसके बट बावजूद दैट इज भी। वेरी कॉमन नो आशिमा, बट यही कर सकते थे, जैसे कि अगर तुम और मैं हैं, अगर तुम मेरे को किसी चीज का हर्डल कर रही हो और कहीं हम वर्कशॉप पे जाते हैं, यू आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली विद मी एंड यू आर सेइंग अच्छा तुम पीछे रहो, मैं ही लीड लूंगी, मैं ही सब करूंगी, तो एक बार मैं आके तुमसे जरूर कहना चाहूंगी कि आशिमा हम लोग साथ में हैं यहाँ पे, कभी मुझे भी थोड़ा ट्राई करो, मुझे समझने की कोशिश करो, साथ काम कर रहे हैं, साथ की तरह साथ देते हैं एक दूसरे का। अब उसके बाद तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा रिस्पॉन्स मेरी तरफ क्या आता है वो तुम्हारा अपना है कि क्या करना चाह रही हो, राइट? एब्सोल्युटली, अगर वो मैं राइट, बट दीवार एक बना लिए तो पेनिट्रेट हो ही नहीं पाएगा ना।
यस, बट मैंने एक बार कोशिश की और फिर मुझे ये समझ आ जाएगा कि अच्छा मुझे कोई दूसरा वे निकालना है शायद, या तो मुझे अपने आप को इतना कैपेबल करना है कि लोग मुझे मेकआउट करें कि अच्छा शी इज ऑल्सो गुड इन वर्कशॉप, चाहे उसको 10 मिनट मिल रहे थे पर उस 10 मिनट में उसने अपना मार्क छोड़ दिया वहां पे, वो अब 10 मिनट मिस्टर लोगों ने ऐसे कॉन्फिडेंट सुने। बोलते हैं यस, अर्चिका, गिल्ट इज इम्पोर्टेंट टू थिंक ट्वाइस। गिल्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। और दीपक बोलता है फीलिंग ऑफ गिल्ट इज द वर्स्ट फीलिंग। एब्सोल्युटली, गिल्ट फीलिंग जो है ना, अर्चिका ने बहुत बहुत अच्छे से उमेश जी को ये बताया कि शायद वो गिल्ट की फीलिंग नहीं है, क्योंकि जब कोई मरता है, कोई इस दुनिया से जाता है, उसकी जिंदगी आगे की क्या है हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम उस इंसान तक नहीं पहुंच पाएंगे। शायद हमारे मन में कुछ ऐसा था जो हम उसको कहना चाह रहे थे, उसकी वजह से हमें जो भी प्रॉब्लम्स आई, तो शायद वो चीज हावी होती है उमेश जी। या मैडम, क्योंकि आपने शायद उनको जानबूझ के उनको ये तो नहीं कहा होगा कि बुढ़ा मर जाए। आई मीन सॉरी, हाँ मेरी इस तरह के शब्द कई बार इंसान यूज कर भी लेता है कि क्या है ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमें रिवॉर्ड नहीं कर रहा, हर टाइम मेरे सामने रोड़े अटकाते रहता है, और इस तरह की बातें हम गुस्से में करते हैं। मगर जो हाँ, मैडम ने जो बोला, अर्चिका मैडम ने जो बोले ना कि क्या मैंने अपने तरफ से प्रयास किया क्या वो करने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए, सुनने के लिए, वो चीज़ हाँ, मैंने नहीं किया। वो करना चाहिए था मेरे को, सर अच्छा, से बात करनी चाहिए थी मेरे को। बट अब आगे से करेंगे उमेश जी। अब आगे से जब भी लाइफ में ऐसा कुछ होगा ना, सबसे पहले आपके दिमाग में यही थॉट आएगा कि एक बार जाके बोलता हूँ बस, फिर देखेंगे क्या होगा। जी, अब श्योर। शायद आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे एक बार, पर प्रॉब्लम वही होती है एज यू आर सेइंग कि मिस्टर कॉन्फिडेंट नूर आशिमा कह रहे हैं कि गिल्ट इज इम्पोर्टेंट टू थिंक ट्वाइस एंड टू इम्प्रूव। ठीक है, समवेयर आई एग्री एंड आई कैन रिलेट टू इट कि ठीक है, पर ये गिल्ट भी एक हमारा इमोशन ही है। पर प्रॉब्लम यह है कि जब इससे बाहर नहीं आ पाते हैं तो ये बाकी इमोशन जो हमारे खराब करता है और थॉट प्रोसेस को जो डैमेज करता है, दैट इज अ प्रॉब्लम। If we are having a guilt, we are improving on it, we are doing our analysis properly, then it's perfectly all right. Guilt is also a feeling of regret, you know. We are या feeling और उसी गिल्ट को हम थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई करके अपना रेक्टिफाई कर ले एरर, तो फिर उससे अच्छा कुछ है नहीं। मुझे सो याद है गिल्ट, अर्चिका, उमेश जी को शायद हमने आज से 15-20 दिन पहले जब इनसे बात रोज हो रहा था, तब ये रोज आते थे, तो ये बात हुआ था कि आप एक बार बात करके देखो। तो शायद उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि बात पॉसिबल नहीं है या कुछ ऐसा, मुझे हल्का सा याद आ रहा है, पूरा याद नहीं है। मगर कोई बात नहीं अर्चिका, जो बहुत ब्यूटीफुल बात जो आपने कही है कि अभी जो हो गया वो आपके हाथ में था ही नहीं, मगर हाँ आगे के लिए आप बात करोगे तो शायद सॉल्यूशंस निकल आए, है ना। ऑलवेज ऑलवेज आशिमा, आई थिंक बात करना। प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? प्रॉब्लम वी ऑलवेज फील बैड व्हेन वी डोंट ट्राई, वी गिव अप विदाउट एब्सोल्युटली। ट्राइंग। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी कम्युनिकेशन, वॉट एवर इट इज इन लाइफ, अगर एक बार ट्राई कर लेते हैं तो एक रीजन मिल जाता है एंड वी कैन लिव विद इट, यू नो। एंड एब्सोल्युटली। इन रिलेशनशिप हम कहते हैं ना, कोई हमें अरे एक बार बोल के जाता, मुझे एक बार बता के जाता, फिर चला जाता, पर जो अर्चिका, मुझे रीजन नहीं मिलता। जो हमारा यस यस अनफिनिश्ड बिजनेस वाली थ्योरी है वो याद आ रही है। कई बार जब यस जब आपको कोई आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ आपसे बात किए आपको छोड़ देता है रिश्तों में, रोमांटिक रिले, बहुत बार बोलते हैं ना कि मुझ में क्या कमी थी जो मुझे ऐसे छोड़ दिया, और व्हाई दिस पर्सन लेफ्ट मी, व्हाई दिस पर्सन डिड नॉट टेल मी व्हाट वाज रॉन्ग इन मी। This unfinished business sometimes, it takes its toll. So, but here उमेश जी, I think आपने जो बोला कि अर्चिका ने आपको जो बताया, it made sense. I hope कि आप वो गिल्ट फीलिंग से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें आपने शायद कुछ गलत किया नहीं है। ये तो एक विधि का विधान वाली बात है। मगर हाँ, जहां तक बात करने की बात है, शायद उस टाइम पे आपको इतनी करेज उनके कैरेक्टर की वजह से या उनके ऑरा की वजह से नहीं आई होगी। बट ठीक है, लाइफ है, जिंदगी है, जिंदगी का हर मुकाम बढ़ता चला जाता है, हम सब सीखते चले जाते हैं कुछ ना कुछ। And Nashima, I would say that Umesh ji is feeling this thing in professional life and all that. And what about the people who feel this thing in personal life? हम्म
then this feeling is killing. And it kills them every day, every minute, whole life, until unless they get this awareness or insight or somebody is there to make them understand. Because what I was talking to you earlier, that we have parents, we used to have parents, and still we have like father and mother who are not having good communication with their kids. And when we lose somebody, then we are like, he or she should have told me this. He or she should have communicated. There is one incident or one case I remember right now. It happened, I think, 2 years back. Both the parents, it came in newspaper also. I will not mention name or place anything, but it happened that both the parents were doctors. Their son was pursuing for this NEET exam for medical and all. He was not interested, but he was so much under pressure that he was going for it. And finally, when he just couldn't get it, he, killed himself. या अर्चिका, ऐसे केसेस तो बच्चों के अभी That recent very moment, parents were like कि एक बार बता दिया होता कि नहीं करना चाहता, अरे कब बता दिया होता. So this is what I'm saying कि personal life, professionally तो उमेश जी, you can deal with it. We are giving you insight and awareness. You can deal and you can come out. But personally अगर ये चीजें होती हैं तो इसके लिए बाहर लाने के लिए it's a complete process and it's a long lengthy journey. एंड आई थिंक कम्युनिकेशन इज द की. अर्चिका, रिश्तों में भी प्रॉब्लम तब होती है जब कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है और एक ऑर्डर आ रहा होता है हर जगह से ही. हमने बोला ना, वो अंकल के बेटा डॉक्टर बना है, तुमको भी बनना ही है, इंजीनियर बनना ही है. और जब वो कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है, और आजकल के बच्चे तो उनमें इतना वो मतलब उनका इमोशनल अपीवल इतना स्ट्रांग है क्योंकि उनके माँ बाप उनको हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं. और पेशेंस भी नहीं है आजकल बच्चों में, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसके लिए पेरेंट्स भी जिम्मेदार है. दैट दे आर सो क्विक एट टेकिंग सच हार्श डिसीजंस. और तब माँ बाप बैठ के फिर सोचते रह जाते हैं ये क्या हो गया. So I think communication in any relationship is very important. जी उमेश जी. आप लोगों ने जो सजेस्ट किए, मेरे को शायद नूर को भी उसके प्रश्न के जो भी क्वेरी थे उसको आंसर मिल गए होंगे, सेटिस्फाई हुई होगी शायद वो भी. नूर. हाँ मैम, सुन रही, मैं समझ में. बेल बज रही है. और एक छोटा सा और एक सवाल भी है मेरे दिमाग में कि हाँ, रिश्ते में ऑनेस्ट रहना जरूरी है बोलते हैं. जब हम ऑनेस्ट होके सब मतलब बताते ना तो कई बार बिगड़ जाते भी है. तो अब ऑनेस्टी की क्या परिभाषा है? मतलब जो है जैसा है वो बोल दिए, समझो सामने वाले बुरा मान जाते हैं. मतलब छुपाना बोले तो छुपाए तो फिर छुपाए बोलते, नहीं छुपाए तो नहीं छुपाए, बताए नहीं, मतलब वो ऐसा बोलते हैं. फिर बता दिए तो ऐसा कैसा बता दिया, ऐसा नहीं बताना बोल के बोलते हैं. तो कैसा है मैम, क्या करना है मैम? आप कैसे बोले, क्या बताया, वो मैटर करता है ना बच्चे. मान लो अर्चिका तुम कुछ कह रही हो, बोलो. यस नूर, सबसे पहली बात है कि जो रिश्ता है ना, उस रिश्ते को पहले समझना है. जहां तक ऑनेस्टी की बात है रिश्ते में, तो ऑनेस्टी होना जरूरी है, पर ऐसी ऑनेस्टी जो रिश्ते को बिगाड़ दे, वो एक ऑनेस्टी नहीं हुई, वो तो फिर एक प्रॉब्लम हुई. सो हर रिश्ते में ऐसा नहीं है, आप पेरेंट्स हो, आप हस्बैंड हो, आप बेटा है, आपका बेटी है, तो आप सब कुछ बताया जाता है. कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, कुछ समझाई जाती हैं, कुछ करके दिखाई जाती हैं, पर इम्पॉर्टेंट क्या है, रिश्ते को जोड़ के रखना. तो उस रिश्ते को जोड़ के रखने के लिए एफर्ट्स में क्या क्या डालना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है. एंड यहीं हम लोग फेल हो जाते हैं. हम कहते हैं मैंने तो सब कुछ बता दिया था यार खोल के, मैं तो ये मेरी फीलिंग्स बता दी. क्या पता उस टाइम सामने वाले को फीलिंग जानने की ज़रूरत नहीं थी, उसको सिर्फ इतना ही जानना था, उसको सिर्फ इतना ही चाहिए था कि आप उसके साथ बैठे हो और आप उससे कुछ नहीं कह रहे हो. तो प्रॉब्लम यही हो रही है आजकल रिलेशनशिप में, वी आर फेलिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वी एक्चुअली नीड टू डू, हाउ वी नीड टू डू, व्हेन वी नीड टू डू. ये सारी जो पैरामीटर, ये सारी जो डेफिनेशन है, सारी मिक्स्ड हो गई हैं. या तो हम कहते हैं मैं तो बिल्कुल ही ऑनेस्ट हूँ, मैंने तो सब बता दिया. ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा है रिलेशनशिप में, पर जब ट्रांसपेरेंसी है तो फिर तो कुछ क्रेज रह ही नहीं गया. कई बार होता है ना कि जो चीज़ छुपी रहती है उसका क्रेज बना रहता है.
उस क्रेज के पीछे हम कई बार पूरी लाइफ निकाल देते हैं। हर दिन एक नया पेज खुल रहा है, हर दिन एक नया एक्सपेक्ट मिल रहा है आपको अपने स्पाउस का देखने को, चिल्ड्रंस का, और एनीबडी इन योर रिलेशनशिप अराउंड। सो दिस इज अ काइंड ऑफ कई बार रिश्तों को जीते जीते हम सीख जाते हैं कैसे निभाने हैं, कई बार दूसरों से सीख जाते हैं। बट हाँ, हर बार सब, व्हाट आई टोल्ड यू, कि सब कुछ सब जगह नहीं बताया जाता, एंड सब कुछ नहीं छुपाना भी ये नहीं होता कि आप ऑनेस्ट नहीं हो। इट जस्ट लाइक कि उस टाइम आपने वो चीज नहीं बताई जो उस टाइम चीजों को बिगाड़ सकती थी, दैट्स इट, एंड इट्स गुड। फाइनली हमारा टारगेट क्या है? रिश्ते को बचा के रखना, रिश्ते को स्ट्रांग रखना। हाउ वी आर डूइंग इट, व्हेन वी आर डूइंग इट, व्हाट वी आर डूइंग इट, दैट डजंट मैटर। वो तो बैक स्टेज का काम है। स्टेज पे जो शो चल रहा है वो परफेक्टली चल रहा है, उसको सब प्रेज कर रहे हैं, सबका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, एंड वी आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। एम आई क्लियर? आई वुड लाइक टू बिल्ड ऑन हियर अर्चिका। देखो, रिश्तों के अंदर ये बहुत खूबसूरत बात आपने बोली कि टाइम, जगह, क्या बोल रहे हो, किस तरह से बोल रहे हो, शब्दों का क्या इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपने बोला कि सच्चा, आप झूठ नहीं बोलते हो, आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते कभी भी नहीं टिकते हैं। और दीपक भी बोल रहे हैं क्या सच नहीं बोलना चाहिए? नहीं, कई जगहों पे आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जब आपको पता हो कि एक सिचुएशन ऐसी है, उस सिचुएशन में आपका कुछ भी बोलना बैकफायर करेगा। जैसा हम ये बार बार बोलते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी की जिसकी हम बात करते हैं, कॉग्निशन का मतलब होता है जो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हमारे माइंड में चल रही है, जो हो रही है, उस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के हिसाब से हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन की ग्रेविटी को भापना होता है, सीरियसनेस को देखना होता है। अब कई बार, अभी एक ना यंग शेल्डन करके सीरीज आ रही है, यंग शेल्डन में वो जो बच्चा है सुपर इंटेलिजेंट है। सुपर इंटेलिजेंट होने की वजह से वो जो भी बोलता है एकदम ब्लंट बोलता है। अब जब वो ब्लंट बोलता है तो होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग देयर? सामने वाले को उसकी बात समझ नहीं आ रही है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दे आर नॉट एबल टू रिलेट। तो कई बार आपको बातों को एक अलग तरीके से कहना होता है। बोलते हैं ना कि कई बार आपको कड़वी गोली के ऊपर मीठा चाशनी लगा करके देना पड़ता है, बिकॉज रिश्ते ऐसे ही हैं। रिलेशनशिप्स आर ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स इन सच अ मैनर कि दो लोग इकट्ठे जुड़ के चल सकें और हम लोगों की ईगोज बीच में ना आए। मगर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं, जैसे कम्युनिकेशन का तरीका क्या है, जब नूर ने कहा ऑनेस्टली, मान लो मेरे सामने मेरी बहन आती है तो मैं बोलती हूँ क्या कपड़े पहन के रखे हैं, क्या बेवकूफ लग रही हो। अब मेरी बहन शायद वो बर्दाश्त कर जाएगी, मगर अगर मेरी फ्रेंड सामने आएगी, उसका और मेरा रिश्ता उतना गहरा नहीं है, और मैं उसको ये कहूँ क्या बेवकूफ लग रही हो, कैसे कपड़े पहने हैं, तो शायद उसको मेरी बात ईगो लगे, शायद उसको लगे कि मैं अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हूँ और मैं किसी को भी कुछ भी कह सकती हूँ। उस जगह पे अगर मैं उसको ये बोलूँ, अरे आप तो बहुत खूबसूरत हो और हमेशा बहुत अच्छे तरीके से सज के रहती हो, आज जो आपने कपड़े पहने अच्छे तो हैं, मगर आप कुछ और पहनते तो शायद वो और सुंदर लगता। सो आपके जो शब्दों का चयन है, द वर्ड्स विच यू चूज टू स्पीक, द टोन इन विच यू स्पीक, चाहे वो कोई भी भाषा हो। अब इस हमारे मेंजा के ऊपर बहुत सारे लोग अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन सीखना चाह रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ दे शुड बी गोइंग इन फॉर इंटरव्यूज। द रूट ऑफ एनीथिंग इज कम्युनिकेशन and the way the communication is done, and whether it is in relationship, whether it is in for a job interview, everything matters. My tonal quality, my choice of words, my rhythm, my trying to establish a connection with the person on the other side, and also the willingness of the person on the other side to be there. All these things matter. नूर, हाँ मैम। क्या समझ में आया अर्चिका मैम और मेरी बात? वो कौन सी बात कब बोलना है, कैसा बोलना है, और बोलने वक्त सामने वालों का वो कैसा है, वो देख के ख्याल में रख के जब बोलना है, वरना चुप रहना है। वरना चुप रहना है। वो बात अगर दिल में दर्द देगी या प्रॉब्लम देगी, सोचना है कि इस बात को किस तरह से अच्छे तरीके से बोला जाए
ताकि ये दूसरे तक पहुंच भी जाए और बैकफायर भी ना करे। यही सबसे Ashima, मुश्किल काम है। we can explain this in today's situation. जैसे दीपक is saying, तो क्या सच बोलना नहीं चाहिए? नहीं, सच बोलना चाहिए। जैसे उमेश जी अपनी डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम और उन्होंने कहा मुझे गिल्ट हो रहा है, तो मैंने भी सच बोला, हाँ सर आपको गिल्ट हो रहा है, पर उस गिल्ट का रीजन क्या है, उस गिल्ट से हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी विल वर्क ऑन। मैंने सच ही बोला कि हाँ गिल्ट तो हो रहा है आपको, पर उस गिल्ट का रीजन ये है और उसे मॉडिफाई करके इस तरह से हम बाहर आ जाते हैं। चलिए, तो दोनों चीजें हो गई। तो रिलेशनशिप में आप सच बोलो, पर उसके आगे और पीछे किस तरह से बोलना है कि सामने वाले को वो सच भी समझ आ जाए और आपका वो भी ऐसा तरीका ऐसा भी ना लगे कि आप इंसल्ट कर रहे हैं। और इतना सच कितना बोलना है कि वो कड़वा ना हो जाए। अति से अमृत भी जहर बन जाता है, तो वो अति नहीं करनी है। हाँ, अति सर्वत्र। Did I make myself clear or did I make some sense? हाँ मैम, मेरे को समझ में आया। What about Deepak? Saurabh also says absolutely. Thank you, Saurabh. Deepak says, oh, all right. This expression is nice. Oh, ऐसे बोलना है मतलब। अच्छा, आज ही जाके दीपक ट्राई करेंगे कि सच बोलता हूँ पर पहले सोचता हूँ पहले बाद में क्या, और सच कौन सा। Right? Please share with us. All right. So, Archika, but there can be certain situation जहाँ पर कि रिपेयर करना बहुत, जैसे हमने ट्रस्ट की बात की, नूर ने ये पूछा था, नूर को इस चीज़ का समझ आया कि नहीं, वो नूर से पूछना बाकी है कि ट्रस्ट इतना मत कर लो कि खुद का अर्जा हो जाए। अगर कोई बार बार आपको झूठ बोल रहा है, बार बार आपको गलत बोल रहा है और आपको समझ में आ रहा है, तो उसको कन्फ्रंट करना ज़रूरी है। वहाँ सीधे स्पष्ट शब्दों में और प्यार से कन्फ्रंट करना पड़ेगा, ताकि सामने वाले को ये नहीं लगे कि आप बेवकूफ़ हो। और रिश्ता कभी कभी भी एक तरफा नहीं होता है, राइट? हाँ मैम, मेरे को समझ में आया। कन्फ्रंट करो प्यार से, और फिर बाद में अपने बाउंड्रीज तैयार करके रख लो और अपने आप को उस दौर तक नको ले जाओ जहां आपके इमोशंस हर्ट हो। Absolutely. Now, there can be certain situations, Archika, which are irreparable, बहुत challenging होती हैं, जहाँ पे आप Yes, Ashima, there are. और वहां पे मुझे लगता है फिर हम डिसाइड करते हैं क्योंकि वी वांट टू डू दिस और वी वांट टू डू दैट, जहाँ की जनरली आजकल जो रिलेशनशिप्स में होती हैं बहुत ज्यादा, एंड वी आर लुकिंग कि फिर पीपल आर गोइंग फॉर डाइवोर्स, राइट? बिकॉज दे आर सेइंग कि अब ये रिश्ता जुड़ नहीं सकता, आगे चल नहीं सकता, तो खत्म कर देते हैं। बट आफ्टर दैट ऑल्सो दे आर हैविंग अ गुड रिलेशनशिप एज ए फ्रेंड, दे आर मीटिंग ईच अदर but in a different way, but not on the same tangent, not on the same line and length what they used to be. But that is something again I would say कि उसको समझना, सोचना, टाइम देना, एक forgiveness वाला फैक्टर उसमें जोड़ना बहुत जरूरी है। When everything you have tried and tested and then it's not working and you are unable to mend it and make it and whatever, it's like okay now it's not happening, then this is the situation it is. Do you think such relationships जहाँ पे डिवोर्स तक बात आती है, शायद उन रिश्तों में जाने से पहले ही उन लोगों ने उन रिश्तों को बड़े ध्यान से परखा नहीं और जल्दबाजी में they got into a relationship? Do you think something like that happened? Not always, Ashima, because जब आप किसी रिश्ते में जीना शुरू करते हैं, when you start We can't hear you, Archika. I would like to say yes and no. Archika की आवाज नहीं आ रही है. Can you all hear me? Noor, am I audible? हाँ मैम, आप ऑडिबल हो? Yes, ma'am, you're audible. Archika ma'am is not audible. So, in a lot of times, people, when they get into relationships, they don't get into relationships with their eyes open, because they are avoiding a lot of issues or a lot of situations which can become very big problems in the future life. And that is why it is very important to communicate and discuss aspects of relationship
शादी से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते रहते हैं बिकॉज वी आर अफ्रेड। हमें लगता है क्योंकि हम एक रिश्ते में हैं, अगर हमने अपनी एक बाउंड्री क्रॉस कर ली तो सामने वाला हमें छोड़ ना दे, और शायद यहीं पर हम गलत हो जाते हैं. A lot of relationships, when we get into those relationships, we are not ready to see, or we rather deliberately try to overlook the issues on the or the problems which are happening. For example, over possessiveness. You have seen a lot of girls and a lot of relationships breaking down after marriage, क्योंकि शादी से पहले लड़का जब लड़की को कहीं नहीं जाने देता था, उसको बोलता था जहां जाओगी मेरे साथ जाओगी, मैं लेके जाऊंगा, तो लड़की को लगता था अरे ये तो मेरा बहुत ख्याल करता है. मगर कहीं ना कहीं वो लड़की अपनी उस इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट को छोड़ देती है. मगर शादी के बाद पता चलता है यार ये तो मेरा गला दब गया, ये तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देगा, ये तो ओवर पोजेसिव है, मेरा फोन भी चेक करता है, मुझे ये समझता है कि मेरा कहीं अफेयर ना चल रहा हो. तो जो एस्पेक्ट ऑफ ओवर पोजेसिवनेस है, दैट रियली हर्ट्स एट अ लेटर स्टेज इन लाइफ, जब आप शादी कर लेते हो. तो आई थिंक वन शुड गेट इन टू मैरिज विद द आईज ओपन. Archika, can you speak? Priyanka is here. Yeah, Priyanka, go on, dear. Priyanka, were you hearing? Yes, ma'am. Good afternoon. I just joined. Let me Oh, you connect just... more with you people. Then I'll speak. No problems. We are just 2 minutes away from ending the session, so you probably came in late today. No problems. You can hear or you can join back on Monday. Archika, are you there? Can we hear you again? Do you understand? And do you copy to what I'm saying? Okay. So guys, it's 1 minute 30 seconds away. So I would like to wrap up the session by saying that yes, it is not easy, but it is also not difficult to resolve a lot of issues or the problems in relationships if we are willing to do it. We means the people on both the sides. Relationship takes two to tango. It can never be one person's game. It always has two or more people involved. When we talk about the relationship with parents, friends, siblings, your romantic relationships, you have all the relationships to be willing, both the people on both sides to be willing to work it out. So most of the relations can be worked it out if we are ready to understand the aspects, and if we are ready to respect each other and understand each other and work it out by understanding the perspective of the other. But there can be many relationships, some relationships which go beyond the irreparable. When somebody is continuously betraying, or somebody is continuously abusive and violent, and somebody who is unwilling to change. And fourth is when there is no emotional conception. So if somebody is abusive, somebody is emotionally not able to make connection, is unwilling to change, and is not